Hello students, how are you all? I hope all of you are fine and stay safe at your home. I hope all of you are doing well with your online studies with Ankita ma'am. And in our previous class, we start a new chapter which is your force and laws of motion. And in the previous class, we studied about the first law of motion and what is inertia, what is the relation between inertia and mass. So first, let's take a quick revision of the previous class that about the first law of motion and the inertia. Then move to the next topic, which is our second law of motion. So first, take a quick revision. Here is one summary of the previous class. So first, the statement of the first law of motion, which is an object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an external unbalanced force. जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करता तभी तक ना ही वो रेस्ट पोजीशन चेंज होता है, ना ही एक यूनिफॉर्म मोशन में जाने वाला ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी को चेंज करता है. So then the first law of motion is known as also the law of inertia. So what is inertia? Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. Inertia is basically the tendency of our body to resist the change of any state. Inertia हमारे बॉडी के कोई भी चेंजेस को रेजिस्ट करता है, चेंज करने नहीं देता है तब तक जब तक एक अनबैलेंस्ड फोर्स आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट ना करे. The mass of an object is a measure of its inertia. Inertia जो मेजर हम लोग करते हैं वो डिपेंड करता है आपके मास के ऊपर भी. Because when the mass is increases, that means the inertia of the body is increased. When the mass is decreased, that means your inertia of the body is decreased. So these are the summary of the previous class. So now move to the Newton's second law of motion. But before starting the Newton's second law of motion, we have to know one term that is momentum. Momentum term के बारे में हमें जानना पड़ेगा. See, in your first law of motion, when an unbalanced force acts on an object, it velocity change. Obviously, its velocity change. That means it takes acceleration. उसके अंदर उसके बॉडी ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के अंदर क्या जनरेट होता है, आपके एक्सेलरेशन जनरेट होता है. सो ये बेसिकली हो गया आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में. सो इन केस ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. What is the relationship between your force and acceleration? How we can measure the force? So to know about the second law of motion, first we know about one term which is momentum. So momentum क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं. See, एक कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं. Consider two balls like one tennis ball and one cricket ball. Consider two balls and throw this ball at the same time with the same velocity. Okay, दो बॉल कंसिडर किए हैं, एक क्रिकेट बॉल टेनिस बॉल, दोनों को एट ए टाइम हम लोग थ्रो करते हैं विद द सेम वेलोसिटी. So it is obvious that a man who stops the cricket ball require a highest amount of force to stop the tennis ball than the tennis ball. ऑब्वियसली टेनिस बॉल को स्टॉप करने के लिए एक पर्सन को जितना फोर्स की ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है एक क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए. बिकॉज ये द मास इज डिफरेंट इन द टू बॉल. मे बी योर क्रिकेट बॉल इज मच मोर हेवियर दैन द टेनिस बॉल. क्रिकेट बॉल ज़्यादातर हेवियर होते हैं आपकी टेनिस बॉल से. सो क्रिकेट बॉल का जो मास होता है वो आपकी टेनिस बॉल के मास से ज़्यादा होता है. ये चीज हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो मोमेंटम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मोमेंटम हमेशा हम लोग एक मूविंग ऑब्जेक्ट का ही एक टर्म होता है. बिकॉज इन द केस ऑफ द रेस्ट ऑब्जेक्ट द मोमेंटम इज जीरो. आपका कैसे जीरो हो रहा है वो हम लोग देखेंगे, बट हम लोग हमेशा मोमेंटम को मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ही कंसिडर करते हैं. सो टू स्टॉप the force applied to stop the moving object is directly proportional with the mass of the object. जो फोर्स लगता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी मास के साथ. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपको भी फोर्स लगेगा उस मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए. सो दिस वन एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल और एक कंसिडर करते हैं
now we consider two cricket balls with same mass and size, but we throw it with a different velocity. अगर मतलब एक बॉल को हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से उसको थ्रो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वाले को 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों को डिफरेंट वेलोसिटी के साथ अब थ्रो कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली आप लोग खुद ही दिमाग लगा लो कि कौन से बॉल को रोकने के लिए, कौन से बॉल को स्टॉप करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी. ऑब्वियसली जो स्लो में बॉल आ रहा है उसको आप लोग इजीली रोक सकते हैं, बट जो फास्ट मूविंग बॉल है उसको आप लोग रोकने के लिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है. So here also we conclude that the force required to stop a moving object is also directly proportional with your velocity of the object. First, we conclude that the force required to stop a moving object is directly proportional with the mass of the object, and the force required to stop the moving object is directly proportional with the velocity of the object. So similarly अगर combine कर दे, so it directly proportional with the mass and the velocity of an object. Okay, so इसी चीज को, ये जो force required to stop a moving object, इसी term को हम लोग नाम देते हैं momentum. So momentum is directly proportional to mass and the velocity of the object. So इसी चीज को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं कि मोमेंटम एक्चुअली में होता क्या है. बेसिक आइडिया तो मिल गया कि कैसे एक मास एंड वेलोसिटी के ऊपर आपका फोर्स डिपेंड कर रहा है. मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स हमें रिक्वायरमेंट हो रहा है वो कैसे आपके मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड हो रहा है. तो उसी चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं कि मोमेंटम एक्चुअली में है क्या. सो हियर मोमेंटम दैट इज when the force required to stop a moving object is directly proportional with the mass of the object and also directly proportional with the velocity of the object. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपको फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए. अब देखो, आप लोग एक साइकिल को इजीली स्टॉप कर सकते हो, बट एक बस को इजीली नहीं स्टॉप कर सकते बिकॉज द डिफरेंस ऑफ मास इज वेरी हाई. देन इन केस ऑफ द वेलोसिटी के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो फोर्स है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आपके वेलोसिटी के साथ. तो उसी को हम लोग मोमेंटम का टर्म, मतलब मोमेंटम टर्म के नाम में उसको जानते हैं. सो मोमेंटम इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी. द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी और मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी, ये भी आप लोग लिख सकते हैं. मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी, ऑफ अ मूविंग object. Okay, momentum of a moving object is defined as the product of its mass and velocity. So how can we write the expression momentum is equal to mass into velocity? That is P equal to mv. We denote momentum as capital P. Then when the object at rest, the velocity is 0. Okay, there is no motion of the object, so that's why your momentum is 0. So हम लोग मोमेंटम को हमेशा इसलिए मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ही कंसिडर करते हैं, ना कि रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए. It is a vector quantity. Because it has magnitude and direction. What is its direction? Its direction is always in the direction of the velocity of an object. It is in the direction of the velocity of an object. So next, what is the unit of the momentum? Obviously, that is also a big point. What is the SI unit of the momentum? Because we know that momentum is equal to mv. Okay, so SI unit of mass is kg and SI unit of velocity is meter per second. Okay, so kg meter per second, और उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, that is kg meter second inverse. Okay, so these are the SI units. SI units of momentum is kg meter per second inverse. Okay, so these are the all terms about the momentum. और इसी को बेस करके अब हम लोग चलेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ. That what is the Newton's second law of motion and how can we relate the force and the acceleration of an object. So here is the Newton's second law of motion, where we discover some relation between force and the acceleration. So what is the Newton's second law of motion? According to the Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. The
चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब जो मोमेंटम चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब समझना, जहाँ पर रेट ऑफ चेंज लिखा गया होगा दैट मीन्स इट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। So the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied to the body and it takes place in the direction in which the force acts। and वो वाला किस direction में जाता है? in which direction the force acts। so we can write that force is directly proportional with the change in momentum with respect to time। so this is basically the second law of motion। so now we move to the मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि मैथमेटिकली हम लोग इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग अभी पढ़ के आए, दैट इज मोमेंटम इक्वल टू P इक्वल टू एम वी। सो टू डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी, ओके, initial velocity that is u। okay, we consider here a object which is moving in a straight line with initial velocity u, final velocity v in time t, okay, time is t, okay, and obviously here the velocity is changed with the initial velocity and the final velocity। वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब ऑब्वियसली एक टर्म आएगा विच इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, वी नो दैट हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वी नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। So here one force is applied to change the object from its initial velocity to the final velocity। एक object का पहले कुछ initial velocity था, some force is applied, some unbalanced force is applied to move the object and its final velocity is v। obviously एक force apply हो रहा है, एक velocity change हो रहा है, तो obviously वहाँ पर acceleration होगा with respect to time t। okay, so the momentum for the initial velocity which is p1। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दैट इज p1। ओके, इनिशियल मोमेंटम p1 हम लोग जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मास तो ऑब्वियसली ये जो भी कोई हम लोग ऑब्जेक्ट कंसीडर किए हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ओके, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं मतलब उसका मास तो कुछ होगा, सपोज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज m। तो अगर यहाँ पर मास हुआ m, then m into velocity, obviously this one is the initial momentum। here we consider the initial velocity is u, so it is mu, the initial momentum is mu। then final momentum which is p2 mv। okay, so what will be the change in momentum? Change in momentum is p2 minus p1 that is mv minus mu, और इसको हम लोग लिख सकते हैं mv minus u। okay, so this is the change in momentum। so according to the second law of motion, force is directly proportional with the change in momentum with respect to time। so what will be the change in momentum here? mv minus u with respect to time। okay, this one is the second law of motion। so directly proportional symbol को अगर हम लोग equal symbol में करते हैं, that means we have to multiply a proportionality constant। तो यहाँ पर एक proportionality constant multiply करेंगे तो यहाँ हो गया f इक्वल टू यहाँ पर एक proportionality constant लेते हैं that is k is a proportionality constant, k mv minus u by t। ओके, इतना तक समझ में आ गया। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू अगर 1 हो जाता है, k इक्वल टू 1, दैट मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स, दैट इज f इक्वल टू m
minus u by t. ओके, mv minus u by t. और ये वाले टर्म को तो बहुत अच्छे से आप लोग पहचानते हो, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. v minus u by t, that is acceleration. So f equal to ma. So this is the final relation from the Newton's second law of motion, that is f equal to ma, force that is applied to an object. M is the mass of an object and acceleration of an object. So this is the basic relation between force and the acceleration. So Newton's second law of motion gives us the relation to measure the force of an object. मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है उस चीज को मेजर करने के लिए ये हमें एक रिलेशन प्रोवाइड करता है. कौन? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो ये होता है, कभी कभी आप चाहते हैं आपके एग्जाम्स वगैरह में डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो इन दिस मैनर यू कैन ऑल्सो डिराइव द मैथमेटिकल derivation of Newton's second law of motion, and sometimes it will maybe asked to you that is derive f equal to ma. So in this way you can also write this equation, that is force equal to mass into acceleration. So force equal to mass into acceleration, यहाँ से हम लोग acceleration भी find out कर सकते हैं. acceleration क्या हो जाएगा? acceleration हो गया a equal to f by m. obviously अगर force हमारा constant है, that means अगर आपका acceleration डबल होता है तो मास आपका हाफ होगा. अगर आपका एक्सेलरेशन हाफ होता है मतलब मास आपका क्या होगा? डबल होगा. वही सेम कॉन्सेप्ट है ना. इसी वजह से हम लोग लाइट ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली मूव कर लेते हैं, बहुत इजीली उनके एक्सेलरेशन को चेंज कर देते हैं जिनके बहुत ही लेस मास होते हैं. बट तो ऑब्जेक्ट विथ हायर मास हाफ लेस एक्सेलरेशन, इतने इजीली उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो पाते हैं. सो बेसिकली एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द मास. मास के साथ अगर हम लोग बोले कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना हेवी मास वाला ऑब्जेक्ट उतना लेस एक्सेलरेशन होता है. अगर फोर्स कांस्टेंट रहे, अगर मतलब फोर्स के केस में देखिए, अगर फोर्स कांस्टेंट रहे, अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे. सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो नाउ comes to the application of the Newton's second law of motion. That what are the applications of the Newton second law of motion? जैसे कि आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी हम लोग कुछ एप्लीकेशंस वगैरह पढ़े थे. क्या क्या एप्लीकेशन पढ़े थे, कुछ याद है? जैसे कि हम लोग एप्लीकेशंस पढ़े थे व्हेन द ब्रेक्स अप्लाई ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट. जब भी हम लोग बस वगैरह में जा रहे हैं तो बस में बैठे हुए हैं, जब भी वो बस वाला ब्रेक लगाता है तो हम लोग आगे की तरफ चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन. और जब भी कभी हम लोग रेस्ट में रहते हैं और बस अचानक से स्टार्ट होने लगता है तब हम लोग बैकवर्ड थोड़ा सा वी फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज ऑफ द inertia of rest. So these are some applications based on the first law of motion. So now we studied some applications, some main applications of the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion के applications में दो application बहुत important है जो कि आपके एग्जाम्स वगैरह में भी आते हैं. So first application is basically when a cricketer catch a ball, cricket ball. जब भी कभी एक क्रिकेटर कैच करता है एक क्रिकेट बॉल को, ओके, क्रिकेट बॉल को जब भी कभी क्रिकेटर कैच करते वक्त आप लोग कभी मार्क किए होंगे, वो बॉल को बहुत नीचे की तरफ कैच करता है. पहले तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसकी वजह से ही हम लोग एप्लीकेशन को जान पाएंगे. दैट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ये है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ. सो क्रिकेटर के केस में क्या होता है, क्रिकेट जब भी एक बॉल को कैच करता है तो जब भी कभी वो बॉल को कैच करता है वो डायरेक्टली ऐसे ऊपर से कैच नहीं करता, वो अपने हैंड को नीचे नीचे ले के आता है, उसके बाद वो बहुत नीचे की तरफ ऐसे बॉल को कैच करता है. तो उसका रीजन क्या है? हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करें? देखो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग एक हाई वेलोसिटी के साथ क्रिकेट बॉल को फेंकते हुए थ्रू द cricket ball with a high velocity, that means it acquires a large momentum. वो बहुत ही ज़्यादा momentum acquire करता है because momentum is also depend on the mass and the velocity. velocity ज़्यादा होने से उसकी momentum में भी बहुत ज़्यादा हो सकता है. अगर momentum ज़्यादा होगा मतलब वहाँ पर force भी ज़्यादा पड़ेगा and that's why the man also get hurt. मतलब
बॉल को पकड़ रहा है उसको थोड़ा बहुत तो चोट लग सकता है अगर वो डायरेक्ट ऐसे क्रिकेट बॉल को पकड़ ले। सो इस वजह से उसके मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो टर्म। अब चेंज इन मोमेंटम अगर ज़्यादा होने लगे, अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर। तो चेंज इन मोमेंटम अगर ज़्यादा हो तो अगर टाइम कम हो, अगर आप लोग बहुत लेस टाइम में कैच कर लेते हो वो बॉल को, फिर उस केस में क्या होगा, आपको ऑब्वियसली हर्ट होगा, बहुत जोर की लगेगी आपको। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम को इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे। हम लोग अगर टाइम को इंक्रीज कर देते हैं देन फोर्स विल बी डिक्रीज। अगर हम लोग टाइम को इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स यहाँ पर कम पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बॉल को बहुत डायरेक्टली ना पकड़ के बहुत को थोड़ा लेट से ही पकड़ते हैं, बिकॉज ऑफ टू इंक्रीमेंट द टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम लोग बॉल को नीचे की तरफ पकड़ते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा फोर्स कम पड़ेगा एंड उतना ज़्यादा हम लोग को चोट भी नहीं लगेगा। अगर हम लोग डायरेक्टली बॉल को पकड़ देते हैं देन ऑब्वियसली आपको चोट लगेगी। तो इस वजह से टाइम को इंक्रीज करके फोर्स को डिक्रीज करने के लिए हम लोग इस चीज़ को वहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो ये हो गया एक फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन इज आप लोग अगर देखे होंगे हाई जंपर्स लोग को। हाई जंपर के केस में क्या होता है, जो भी हाई जंप वगैरह करते हैं तो वहाँ पर रहता है इधर कुशन्स वगैरह रहते हैं, बेल्ट्स वगैरह, और नहीं तो रहता है दैट इज सैंड बहुत सारे बिछाए रहते हैं। तो क्यों, बिकॉज उसके केस में क्या होता है कि जब एक हाई जंपर जंप करता है सैंड के केस में या कुशन के केस में, उसे बहुत टाइम लगता है स्टॉप होने में। कभी भी हाई जंप वगैरह आप लोग किए होगे तो जानते होंगे, जब भी आप लोग हाई जंप करते हो एक जगह में स्टॉप होने के बाद भी आप लोग घिसते हुए बहुत दूर तक चले जाते हो। तो उस केस में क्या होता है, आपका टाइम इंक्रीज होता है, टाइम बहुत देर तक वैसे ही चलते रहता है, जिसकी वजह से टाइम इंक्रीज होने की वजह से आपको फोर्स कम लगता है एंड आपकी इंजरी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं वहाँ पर। बट इन केस ऑफ द अगर हम लोग कोई भी हार्ड ग्राउंड ले, अगर हम लोग घर में हाई जंप वगैरह करें तो उस केस में क्या होगा, आप लोग एक सरफेस में अगर जंप करोगे तो वहीं पर डायरेक्ट रुक जाओगे। वहीं पर जब डायरेक्ट रुक जाओगे तो ऑब्वियसली देयर इज ए लार्जर मोमेंटम होगा, तो ऑब्वियसली यू गॉट एन इंजरी। सो इंजरी ना होने के लिए हम लोग ऐसे लेते हैं, जैसे कि अगर वो सैंड वाला सरफेस हो या कुशन वाले सरफेस हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम में इंक्रीमेंट होता है। टाइम में इंक्रीमेंट कैसे होता है, क्योंकि हम लोग को स्टॉप होने में वहाँ पर टाइम लगता है। हम लोग ऐसा नहीं है कि ऐसे जंप करके स्टॉप हो गए, नहीं, जंप करके हम लोग थोड़ी देर आगे मूव कर जाते हैं। वहाँ पर टाइम इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो फोर्स कम हो जाता है, इसलिए हमें इंजरी ज़्यादा नहीं हो जाती है। सो दीज आर सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो ये क्लास के लिए मतलब आज के लिए बस इतना ही कवर करते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और बाकी के न्यूमेरिकल्स वगैरह तो हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे ही, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पर आपके और मोमेंटम के बेसिस पर आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम जाते हैं टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो, कुछ भी डाउट्स हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे दो।